Yeah, I was saying कि remember that कि when I talk about कि we have to go with what literature क्या है, what is literature, what is poetry, what is drama. Then remember that कि yesterday I told you whenever we talk about literature, then remember that there is a critic Thomas D Quincy. THOMAS Thomas, देन डी के ऊपर मैंने कहा था आपको कामा लगाना है, क्विंसी QUINCEY. Thomas De Quincey, he divided literature into two parts: literature of knowledge and literature of power. Then remember that I told you what is the basic distinction between literature of knowledge and literature of power. I just said I told you कि literature of knowledge means fact and literature of power means fiction. So there is a difference between literature of knowledge and literature of power. When I talk about fact and fiction, you know it very well कि fact it ultimately it refers to what it जो fact है उसमें एक information है. You get information whenever you talk about fact. It means that any discipline that contains information, any discipline that contains information, uh, uh, whether that is science, whether that is history, geography, whenever you get any fact, it has information, it informs you. But on the other hand, when I talk about literature, you come to know that in literature there is what, in literature there is fiction. जो literature है उसमें क्या होता है, उसमें fiction होता है. So what I want to say, what I want to tell you कि whenever we try to understand कि what is literature and what is poetry, yeah, what types of literature we have to study, then remember that in my previous class yesterday, I took only 45 or 50-minute classes. Then I just told you कि in that class I told you what is literature, types of literature, literature of knowledge, literature of power, Thomas De Quincey, fact का, fiction का, all these things I told you. Then I told you कि what is the significance of especially the literature of power which we are studying. Remember that कि in literature of power there is what, there is fiction, number one point, and the primary objective of literature of power is to impart delight and pleasure. मैंने कल भी एक क्लास में बताया था कि जो लिटरेचर ऑफ पार है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ब्रिंग डिलाइट एंड प्लेजर. वह आपको डिलाइट और प्लेजर लाता है. और व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइट एंड प्लेजर? आपको खुशियां लाता है. एंड व्हाट टाइप ऑफ खुशी? इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट द मिमिक्री, यू आर नॉट गोइंग टू लाफ एट समवन. डिलाइट एंड प्लेजर मीन्स विच अपील्स योर soul. Delight and pleasure means which appeals your heart. That is what, that is a type of means that is what it just gives you calm, tranquility, which poet Wordsworth uses in Tintanabe when he gets the company of nature. ये शब्द जो है काम, ट्रैंक्विलिटी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है जब उनको किसकी कंपनी मिलती है, व्हेन ही गेट्स द कंपनी ऑफ nature. So what I want to tell you, what I want to say कि this particular thing is very important in literature of power which we are studying. So being the student of literature of power, being the professor of literature of power, it is highly significant. We should know the particular distinction. हमें उस distinction को जानने की कोशिश करना है. और वह distinction क्या है? Those students, those professors who are studying literature of knowledge, those students, those professors who are studying, are teaching, are delivering lecture on literature of power. So in literature of power we have what, we have emotion. In literature of power we have feelings. In literature of power we have imagination. In literature of power we have what, we have subjectivity. We tell about our own life, we tell about our family members, we tell especially the society in which we live. Undoubtedly that is the reflection of our life. But whenever we tell,
what we tell, we have the primary objective, we have the primary goal. And what is the primary goal of an author associated with literature of power? The primary goal of an author associated with literature of power is to impart delight and pleasure. Always these two words you have to keep in your mind. And what is that key? Delight and pleasure. This is the primary function, this is the primary objective, this is the goal of literature of power. On the other hand, the primary goal of literature of knowledge is what? The primary goal of literature of knowledge is, you will come to know teaching, you will come to know teaching, you will come to know instruction, you will come to know a, a fact, information. All these things you will come to know. And second important point which I want to share to all of you, कि literature of power, it's a dynamic, there is a word dynamic. तो then write down कि जो literature of power है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, यह डायनेमिक है. व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब कि यह निरंतरता है इसमें, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लाइफ है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लाइफ. डायनेमिक है, इसमें बदलाव आता रहता है, तब्दीली आती रहती है. इट्स नॉट लाइक स्टैग्नेंट वाटर, या ठहरे हुए पानी की तरह नहीं है कि जैसे ठहरा हुआ पानी हो कहीं तालाब में और वह पानी एक जगह ठहर जाए तो उसमें बदबू आने लगती है. हमारा सब्जेक्ट वैसा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हमेशा ब्रॉड रहा है और वाइड वाइड थीम को लेकर के बात करता है. इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि जो लिटरेचर ऑफ पार है, लिटरेचर ऑफ पार क्या है? डायनेमिक है, बहता हुआ पानी है. इट्स नॉट लाइक अ पॉन्ड, या कोई तालाब नहीं है वेर देर इज स्टैग्नेंट वाटर, जहां पे बदबूदार पानी, वैसा नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि डायनेमिक के अलावा देर इज फ्लूडिटी इन मीनिंग, देर इज फ्लूडिटी, FLUDITY, देर इज फ्लूडिटी इन मीनिंग. जो लिटरेचर ऑफ पार है उसकी मीनिंग में फ्लूडिटी है. फ्लूडिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वहां पे एक लाइन में एक ही मीनिंग निकल रही है. If you are going to interpret a particular line related to literature or part of literature or part, you will get more than one meaning. You will get more than one meaning. और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब मोर देन वन मीनिंग कहीं पर आपको पाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? दैट इज द मल्टीपल मीनिंग, प्लूरिजिग्नेशन. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, जो लिटरेचर ऑफ पार है वह डायनेमिक है, बहता हुआ पानी है. उसमें हर चीज को वेलकम किया जाता है, उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें चीजें जो है with the passage of time you will find new odor, new fragrance, color of imagination, new pattern, way of expression. All these things you will come to know, you will find. So there is odor, there is fragrance, there is that is dynamic. And second point I told you what? There is plurality in meaning. प्लूरैलिटी है, प्लूरैलिटी इन मीनिंग है. एंड दैट प्लूरैलिटी इन मीनिंग क्रिटिक कहते हैं कि देर इज फ्लूडिटी, FLUDITY, फ्लूडिटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूडिटी. हाँ, तो देर इज फ्लूडिटी, वहां पर क्या है? फ्लूडिटी है. और फ्लूडिटी के साथ साथ जो है यू विल कम टू नो ऑल दीज थिंग्स. And what other point I told you? I just told you you can't get ultimately. It's like a pond, yeah. It's like a stagnant water. Yeah, hello. Flu Fluidity का मतलब डायनेमिक मीन्स मीनिंग जो होगा वह प्लूरल होगा, प्लूरल मीनिंग होगा, प्लूरल मीनिंग होगा. Now, are you getting my voice? Am I audible? Okay, okay. So there are certain words which are related to literature of power. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. फ्लूडिटी, डायनेमिक, plurizignation, multiple meaning, more than one meaning, plurizignation.
PlurizigNation. Plurisignation. You will come to know there is plurisignation. मल्टीपल मीनिंग है। और क्या है? डिलाइट है, प्लेजर है उसमें। उसके बाद उसमें क्या है? आपका मॉरल एजुकेशन है। डिलाइट है, प्लेजर है, मॉरल एजुकेशन है। इट अपील्स योर हार्ट एंड सोल। यह हमारे सोल और हार्ट को अपील करता है। ये पॉइंट भी आपको लिखना। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू हैव टू नोट डाउन। इट अपील्स योर हार्ट एंड सोल। It appeals your heart. Your heart can, it appeals our heart and soul. You will come to know it appeals our heart and soul. And some other points, always remember that except it, what other things do you find? What I told you ki undoubtedly there is what? There is no scientific world. Undoubtedly there is no scientific world in literature of power. जो literature of power है उसमें scientific world नहीं होता, लेकिन there is another world, that is the world of humanism. So literature of power contains the world of humanism. It has the world of humanism. Write down next this point, the world of humanism. And the world of humanism refers to what? The world of humanism refers to healing touch. There is no scientific world. We are not going to do experiment like scientists. We don't have laboratory, but we have the world of imagination. We have the world of humanism. And the world of humanism means healing touch. जो हमारे घाव हैं, कुछ घाव ऐसे हैं जो किसी मेडिसिन से नहीं, अगर आप कोई इंजेक्शन उनको देने जा रहे हैं तो उससे नहीं भरेंगे। उसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? उसके लिए यू नीड समथिंग काम, ट्रैंक्विलिटी, ब्यूटी, कंपेशन, जिनरसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? करुणा, दया, प्यार, अटैचमेंट। इसके लिए कोई दवा नहीं होती। यू विल फाइंड दीज थिंग्स वेयर यू विल फाइंड दीज थिंग्स इन लिटरेचर ऑफ पावर। Then if you don't find these things in literature of power, then tell me what is the need to read sonnet mercy? It droppeth as gentle rain from heaven. Then why Portia appeals to Shylock to forgive Antonio? So in literature of power there is the concept of forgiveness, and forgiveness is a natural attribute. इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो मेडिसिन है, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो दवाएं हैं, जो इंसान को दी गई हैं, उसकी स्टडी कहाँ पर होती है? लिटरेचर ऑफ पावर में होती है। लव, you can't produce love by forcing anyone. It's a natural phenomena. Affection, beauty, generosity, attachment, relationship between you and I, compassion, pity. So what I want to say कि when we are in trouble, whenever we are in trouble, we should try to understand कि sometimes when we are in trouble, physically if we are handicapped, mentally distorted, yeah, there is a mental disorder, psychological issues or psychological problem, undoubtedly we consult doctor. That is another process to cure those disease. But in our daily life, a person always suffers from various types of problems. A person face means you and I face thousands of problems in our life, but those problems are going to be resolved
because we all have a beautiful world, that is the world of humanism, and that world is the path of literature of power. If there is takrar, if there is ladai, if there is a type of teasing, if there is what, if there is if you are if you get angry, if you are in nostalgic situation, remembering your past, recalling your gone days, तो जो आपका बीता हुआ बचपन है, क्या उसको याद करने के लिए यू नीड एनी मेडिसिन? आप दवा खाते हैं तब आपको आपका बीता हुआ बचपन याद आता है? नो, नॉट एट ऑल. What happens ultimately, you have the a world, that is the world of humanism, and that world tells you ki yeah, you have to recall, you have to remember your childhood days, you have to remember. So what I want to say, just try to understand what I want to say. जो 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 गजल है जगजीत सिंह ने गाया है, या आई एम मिसिंग द नेम, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. रिमेंबर दैट कि कागज की कश्ती, बारिश का पानी. If you remember those beautiful lines, you will come to know ki is there any medicine, is there any medicine which has been taken by Jagjit Singh, then he just got another world, that is the world of the that was a very beautiful world, and remembering, yeah, recalling the gone days. Had he taken any medicine? No, not at all. How do you recall? How do you recall your gone days? Why do you not forget your past? Even you forget your present become the part of the past, but those things are stored somewhere. Those things are stored in your memory. And how many data, how many GB, I don't know. So those things are stored in your memory. Those things are there, but just I want to know ki when those things are stored it there, when those things are you recall your memory. Just I want to know 2 or 3 points, 4 or 5 points. Whatever the life you lived, just remember your gone days, when you are when you are also kids, when you have just made paper boat and left some ant. कितना खूबसूरत, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मंजर, ब्यूटीफुल पिक्चर. पेपर बोट बनाया गया, उस पे चींटा बैठाया गया, चींटे को पानी में पेपर बोट के साथ डाल दिया गया. देन 4 और 5, 8-10 बच्चों का कंपनी देन स्टार्टेड टू क्लैप. जस्ट रिमेम्बर कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. Then try to understand, is there any discipline? Can you study such type of things in history? Can you study such type of things in geography? Can you study such type of things in chemistry? In that chemistry, you have to study oxygen, you have to study hydrogen, you have to study some another thing. I'm not saying that is there is no significance of that subject. There is the significance of that subject, but there is also the significance of this subject in which you study the chemistry of your life. I would like to use the word literature of power is nothing at all. It's only the study of the chemistry of life. You can note down. Literature of power is the chemistry of the study of life. जो लिटरेचर ऑफ पावर है, यह कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का स्टडी है. हमारे रिलेशनशिप, हमारा अपना जो है रिलेशनशिप, इधर गॉड और ह्यूमन बीइंग्स और नेचर. I just want to tell one important thing.
Especially, I'm going to take the poems means sonnet on his blindness. What do you find? Is there any discipline that can tell the feelings and emotions of a blind man? क्या कोई ऐसा डिसिप्लिन है साइंस का? बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, एनी सब्जेक्ट कॉमर्स से जुड़ा हुआ, इसके अलावा और दूसरी जगह से जुड़ा हुआ, क्या उस सब्जेक्ट में आप ब्लाइंड आदमी की कैफियत को बयां कर सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चन. कैन यू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ अ ब्लाइंड मैन इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी? आप क्या कैफियत बयां करेंगे? अंधा क्यों हुआ, अंधा कैसे हुआ, कौन सा चश्मा लगाया जाए, कौन सा जो है लेंस से लगाया जाए, कैसे अंधा हुआ, जन्म से अंधा था, क्या रीजन था, इन व्हाट सिचुएशन, व्हाट सर्कमस्टेंसेस, यही तो आएगा उस डिसिप्लिन में. बट दिस इज ह्यूमनिज्म, दिस इज लिटरेचर ऑफ पार. यह ह्यूमनिज्म है, यह लिटरेचर ऑफ पार है. दैट टेल्स द फीलिंग्स, दैट टेल्स द इमोशंस of a blind man, and this is literature of power in which a blind man associates himself with whom? Associates himself with God. God doth not need either man's work or his own gift. ईश्वर को ना तो आदमी के काम की जरूरत है, ना तो उसकी गिफ्ट की जरूरत है. कैन यू फाइंड सच अ ब्यूटीफुल लाइन एनीवेयर? No, not at all. So try to understand. I'm not going to make you emotional. My objective is not that you have to go and just say कि commerce is not important. My objective is not to tell you just say and that say science is not important. My objective is only to awake the particular subject which you are studying, how much it is valuable, how much it is precious in your life. आपकी जिंदगी में कितना वैल्यूएबल है, आपकी जिंदगी में कितना प्रीसियस है, एंड हाउ यू कैन डिफेंड, आप इसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं? If any other person, if the discipline of any other person, if any scientist says, if any man of commerce says that ki, oh, you all are the studying poetry, prose, and these things, and there is nothing at all. What is the value of this subject in your life? And there is only imagination, there is only love. You can't earn money. Earning money is not only important. मनी को अर्न इसलिए किया जाता है जिंदगी संवर जाए, और जिंदगी जो संवरती है वो ह्यूमनिज्म से संवरती है. बहुत बड़े पैसे वालों को देखा गया, बहुत बड़े बड़े. कानपुर में यहीं पे आईपीएस थे, वो आईपीएस साहब भी थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी मैरिज बड़े परिवार में हो गई, लेकिन जिंदगी की समझ नहीं आई थी, उनको सुसाइड करना पड़ा. तो जो जिंदगी की समझ है वो इससे नहीं आनी है कि हाउ मच मनी डिड यू अर्न. लाइफ की अंडरस्टैंडिंग इससे नहीं आनी है कि व्हाट द पोस्ट डिड यू गेट. लाइफ की अंडरस्टैंडिंग इससे नहीं आनी कि व्हाट इज योर रिकॉग्निशन, व्हाट इज योर आइडेंटिटी. जितना ज्यादा वो जरूरी, उतना ज्यादा ये भी जरूरी कि हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमनिज्म इन योर लाइफ. कैन यू वाइप द टीयर्स ऑफ समवन? When someone is in crisis, are you ready to help that person? These are the two important questions which always a person should ask. Which always a person should ask. And this is only humanism. This is only such a discipline which tells you. अभी आपको जान के सरप्राइज होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, I got opportunity to address many scholars in different degree colleges. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंस दिया गया तो ह्यूमनिज्म को दिया गया, मतलब फाइन आर्ट्स को, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं. क्यों दिया गया?
इसलिए दिया गया कि डॉक्टर को डॉक्टर तो बना दिया जा रहा है, इलाज करने लायक तो हो जा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर क्या बन गया? कॉमर्शियल डॉक्टर बन गया। वो इंसान नहीं रहा, डॉक्टर तो बन गया बट ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। वह ह्यूमन बीइंग कब बनेगा? ह्यूमन बीइंग तभी बनेगा व्हेन ही हैज सच अ टाइप ऑफ फीलिंग। So what I want to say कि whether you become engineer, whether you become doctor, whether you become professor, whether you become advocate, whether you become any means a well-known scientist, it is also expected that first you are human beings. You are the creature of God. God created you. God created others. And your duty is what? Your duty is that you have to help the creatures created by God. No discrimination, no injustice, no inequality, no feelings of caste, no communal hatred feeling. It is expected. Where will you study? Where will you study these things? So what I want to say, what I want to tell you, कि when you are going to study humanism, when you are going to study this discipline, when you are going to study this particular subject matter, what points should come in your mind? Always remember that this is such a type of discipline that teaches us what? This is such type of discipline that teaches us love. This is such type of discipline that teaches us affection, that teaches us generosity, that gives that tells us the value of pity, that tells us the value of compassion, beauty, emotion, feelings, and it uplifts us morally. What I want to say, it uplift us morally. यह हमें नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उठाती है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लीजिएगा, इट अपलिफ्ट्स अस मोरली। लिटरेचर ऑफ पार, इट अपलिफ्ट अस, यह हमें अपलिफ्ट करती है मोरली, MORALLY। सो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, these things we have to know, these things we have to remember. Anything you can just go, whenever you turn the pages of history, you will come to know that there are so many problems. Problems of life will be studied and it will be only resolved in fine art. I just want to take only one particular thing I will take, and that is what arms and the man. मुझे लगता है we all have studied. I want to know कि are you getting my voice? आपको मेरी आवाज जा रही है? Yeah, yeah. Okay, okay, okay. So I just want to tell you one point कि we all have studied Arms and the Man. In the play Arms and the Man, you come to know two important points. The theme of Arms and the Man is love and war. Love and war. The theme of Arms and the Man is only love and war. Tell me one point कि when you try to understand love and war in Arms and the Man, you find two things: romantic concept of love, realistic concept of love, रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मतलब लव और वार को दो चश्मे से देखा गया है, एक तो रोमांटिक और दूसरा आपका रियलिस्टिक। आप ये बताइए कि वार तो वार होता है, और अगर आप उसको दो चश्मे से देखते हैं तो यह जो दो चश्मा दिखाने वाला आदमी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रहे हैं, उन्होंने उसको दो तरह के कैरेक्टर यूज किए हैं। एक कैरेक्टर सर्जियस, एक कैरेक्टर आपका राइना, और एक कैरेक्टर उनकी माँ कैथरीन पेटकॉफ। मैंने तीन नाम लिया: सर्जियस, राइना, कैथरीन पेटकॉफ। ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, ये जो है रोमांटिक लव में विश्वास करते हैं, और रोमांटिक लव के साथ साथ रोमांटिक वार में विश्वास करते हैं। जस्ट आई वांट टू नो टू ऑल ऑफ यू, कैन यू जस्ट गिव योर ओपिनियन, या ट्राई टू मीन्स जस्ट टेल मी what do you understand, what do you mean by romantic love and romantic war? आपकी नजर में रोमांटिक लव और रोमांटिक वार से क्या मतलब है?
Can anyone can respond me? What do you mean by romantic love and romantic war? उसको आप कैसे समझते हैं? Yeah, yeah. Romantic love or romantic war, ultimately it refers ki when you talk about romantic war, it means that you are going to glorify war. There is the concept of heroism. What I want to say, there is concept of heroism. You are not going to criticize war, but you are going to glorify war. रिमेंबर दैट जब मैं आपको मॉडर्न एज पढ़ाऊंगा तो यह उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, क्योंकि मॉडर्न एज वॉज द एज ऑफ टू वर्ल्ड वार। और उसमें क्या कहा गया था? वॉर वॉर हीरोइक डीड्स, वॉर वॉर हीरोइक डीड्स सीज फ्रेड सजन की पोयम है। उसके अलावा और भी डल से डिकोरम एस्ट बाई विल्फ्रेड ओवेन है। तो किसी में वार को क्रिटिसाइज किया गया, किसी में वार को एडमायर किया गया। जब कोई आदमी वार को एडमायर करता है तो इसका मतलब कि उसके पास रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार है। और जब कोई आदमी लव को, लव इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन जब कोई आदमी लव को इतना एडमायर करे और लव के साथ जीवन की और चीजों को ना जोड़े जो बेसिक चीजें, इसका मतलब वह भी रोमांटिक लव की बात कर रहा है। रोमांटिक लव मीन्स लव ऑफ फेरी वर्ल्ड, लव बिटवीन नाइट एंड फेरी, वोट ला बेली डेम सांस मर्सी। नाउ जस्ट आई वांट टू नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर ऑफ पार, जिसके आप डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन की आप स्टडी कर रहे हैं, वह एक ऐसी डिसिप्लिन है जो कहती है कि हमारा अगर एक पैर जमीन पर रहता है तो दूसरा पैर आसमान पे रहता है। इसीलिए कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अगर मैं किसी से कहूं, साइंटिस्ट से, कि आप जो है चांद पर कैसे जाएंगे, तो साइंटिस्ट ये कहेगा कि मुझे अ, ये चाहिए वो चाहिए, रॉकेट या यूजिंग दीज थिंग्स, आई मीन्स जो साइंटिफिक मेथड है उसको यूज करते हुए मैं जाऊंगा। लेकिन बगल में बैठा हुआ पोयट मुस्कुराएगा, कहेगा जब तक आप जाने की बात कर रहे हैं मैं 7 चक्कर चांद का लगा करके आ चुका हूं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट सब्जेक्ट। देयर इज इमेजिनेशन, एंड दिस इज इमेजिनेशन दैट गिव्स यू कंप्लीट फ्रीडम। कोई टैक्स उस पर नहीं लगना है। आप चाहिए अपने आप को ख्वाबों का बादशाह बना लीजिए, आप चाहिए अपने आप को जो है महलों का राजकुमार बना लीजिए, राजकुमारी बना लीजिए। नो वन इज गोइंग टू इम्पोज एनी टैक्स, यू आर फ्री। इंटायर फ्रीडम यू गेट ओनली एंड ओनली वेयर इन लिटरेचर ऑफ पार। लेकिन दूसरी तरफ दिस इज द ब्यूटी, वही मैं कह रहा हूं कि अगर जब वो आपको फ्रीडम देता है तो दूसरी तरफ वह यह भी बताता है कि यह फ्रीडम बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ देर इज अनदर वर्ल्ड, दैट इज रियलिस्टिक वर्ल्ड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब आर्म्स एंड द मैन को पढ़ा, मतलब जब उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया, तो उन्होंने दो तरह के कैरेक्टर रखे, जिसमें मैंने अभी आपसे रोमांटिक डील किया। दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम कैप्टन ब्लंशली, उसके बाद मेजर पेटकॉफ, लूका और निकोला। उन सब की लाइफ को आप देखेंगे। कैप्टन ब्लंशली कैसा सोल्जर है जो बैटल फील्ड से भाग करके आता है। बैटल फील्ड से जब वह भाग करके आता है तो उसको अपनी जान बचानी है। तो जो 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 जब वह जान बचाता है तो उसको अपनी लाइफ बचाने का एकमात्र मकसद है। और वह मकसद क्या है? वह मकसद यही है कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन वार। रिमेंबर दैट कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन वार। ब्रेवरी मेडिवल काल की ब्रेवरी नहीं, जैसे जैसे वक्त बदला कॉन्सेप्ट ऑफ वार बदल गया, वार की डिफिनीशन बदल गई, वार की मीनिंग बदल गई। पहले लोग ये कहते थे कि जो जो मर्द होते हैं वो कभी जो है उनके हमेशा सीने में गोली दिखाई पड़ती, कभी पीठ, कभी पीछे, मतलब उनकी पीठ पर जो है गोली नहीं होगी। लेकिन ब्लंशली इज आल्सो अ मैन। ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट टाइप ऑफ मर्द ही इज।
Why did he leave battlefield? He is a modern man, and for modern man, war is not important. Modern man needs peace. Modern man doesn't believe in bravery. Modern man doesn't believe in soldiering. Modern man believes in humanism, affection, ब्यूटी, कंपेशन. उनके लिए तलवार चलाना ही, घुड़सवारी करना ही, यही लाइफ नहीं है. रीजन, रेशन, इंटेलेक्चुअलिटी. और इसका कॉन्सेप्ट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और बदल जाता है. तो दिस इज योर सब्जेक्ट. मैंने पहले कहा था कि जो लिटरेचर आप स्टडी कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डायनेमिक है, बदलता रहता है, इसके विचार बदलते रहते हैं किसी एक टॉपिक पर. अगर लव को लेकर के कोई आदमी जो है रोमांटिक लव की बात किया होगा, तो वहीं जीबी शाह आते हैं और कहते हैं रोमांटिक लव उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका एक एस्पेक्ट यह भी यू कांट इग्नोर. तब उन्होंने कहा. इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि राइना इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ ड्रामा, शी वॉज इंगेज्ड विद whom she was engaged with Sergius, but how she turns her situation, how she leaves Sergius and accepts whom, and accept Blanchely as her bridegroom. So this is fine art. Whenever you are going to study, so in fine arts you will come to know these points, या उसमें ये सारी चीजें आएंगी. You will come to know these points, ये सारी चीजें. If you get these points, then remember that you are studying such a type of subjects that reflects your life. Write down second point. Literature of power means reflection of life. वही बात को मैंने दूसरे ढंग से बताया था कि लिटरेचर ऑफ पावर मीन्स स्टडिंग द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. वही चीज फिर मैं कह रहा हूं कि लिटरेचर ऑफ पावर मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. जो लिटरेचर ऑफ पावर है, यह जिंदगी का आईना है. आपका दुख, आपका दर्द, आपका आपके आंसू, आपकी हंसी, आपका जिंदगी का बिताया हुआ एक एक लम्हा, यह अगर कहीं पर रिकॉर्ड होता है तो कहां पर रिकॉर्ड होता है? लिटरेचर ऑफ पावर में. सब ढंग से you will get mathematical concept of life, you will get a scientific approach of life, you will get historian concept of life, historical concept of life. In what way you are going to study life, you will find here. आप उन सारी चीजों को यहां पर पाएंगे, वो सारी चीजें आएंगी. So what I want to say, जब भी मैं ये बात करता हूं, then always remember that कि ये चीजें आती हैं. You will get these things. So I want to tell you, being the student, being teacher, being a professor, should we talk about our subject or not? It's our moral duty. And remember that one more important thing. In literature of power, there is aesthetic sense, aestheticism. Write down this point. In literature of power, there is aestheticism. 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 There is aestheticism. Aestheticism is a word related to beauty. एक ऐसा वर्ड है जो ब्यूटी से रिलेटेड होता है. And here beauty does not mean fair and lovely. Here beauty does not mean fair and handsome. Here beauty means what?
Beauty means beauty of human nature, being the sons and daughters of Almighty God, the beauty which God gave you, that is celestial beauty, that is divine beauty. That beauty is studied in this discipline. Beauty of love, beauty of emotion, feelings, uh, human relationship, compassion, generosity, pity, forgiveness. These beauty. Beauty does not mean that there is Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan took Fair and Lovely or Fair and Handsome. Then Fair and Lovely it becomes fair, kya, something glow karke. All these things. This is not beauty. This is not beauty. It means the people who are living in Africa, those people who are living in South India, if they have black skin, it means that they are not beautiful. No, not at all. Literature of power just ultimately raises question if you advertise such type of things. What do you mean by beauty? If any boy or if any girl, if she or he has black skin, it means that is she not beautiful? She is beautiful. There is absolute beauty, but this is the mentality of our society that told us that beauty means what? Beauty means if you have fair skin, fair color, this is beauty. Again, try to understand, is it not the part of our life? Problem of caste, problem of color, problem of race, problem of gender, problem of so many problems, region, communal problem, किस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, उसकी उसका एक्सप्रेशन किस सब्जेक्ट में करेंगे, देन यू विल कम टू नो उन सब का स्टडी कहीं पे नहीं होगा, केवल फाइन आर्ट्स में होगा. आई गॉट अपॉर्चुनिटी, एक जगह बुलाया गया कि सर जेंडर पे बात करिए. तो जब जेंडर पे बात करिए, अभी फिलीपींस में हुआ था, वहां पर भी 2 बार मैंने दिया था, इधर 4-5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर. तो जब फिलीपींस पे उठाया गया तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया. यूरोप के 2 लोग थे जो है वेरी रिनाउंड प्रोफेसर. उन लोगों ने दे आस्क्ड द क्वेश्चन कि हाउ डू यू टेक जेंडर, how do you understand, especially because whenever I talk about gender, so I don't share the problem of men and women, always I talk about third gender. Then I say, I just told you if there is a mentality and that mentality just tells about the binary concept of gender, कि gender का केवल एक binary frame होगा, और वह binary frame क्या होता है, मेल फीमेल. हम यही 2 ही लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं कि in our society only 2 types of people will remain या will live here, that is male and फीमेल. जब अगर मेल और फीमेल को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सोसाइटी का निर्माण अगर आप ये सोचते हैं केवल इन्हीं से हो रहा है, और बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जेंडर के 2 रूप ही आप लेकर के चल रहे हैं, तो थर्ड जेंडर कहां से आएगा? दैट विल नेवर कम. दे आर आल्सो sons and daughters. They have been disowned by their parents because there was defect in their body. But the question is that कि क्या उनकी बॉडी में जो कमी रह गई है कि वे कंप्लीट मेल और कंप्लीट फीमेल नहीं हो पाए हैं, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है? आर दे रिस्पॉन्सिबल? अगर उनके पास वो जो है चीजें होती तो क्या उसको सही ना कर लेते? कौन कौन हु वांट्स टू बी थर्ड जेंडर? हु वांट्स टू बी थर्ड जेंडर? ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं यू आर नॉट कंप्लीट. देन द क्वेश्चन इज दैट कि हु इज कंप्लीट? कंप्लीट कौन है? कोई कंप्लीट नहीं है. हयावदना में भी सर्च ऑफ कंप्लीटनेस चल रहा था. नो वन इज कंप्लीट. परफेक्शन डजंट लाई एनीवेयर. तो जब आप इस तरह की क्वेश्चंस उठाते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि वेदर दैट थिंग इज रिलेटेड टू जेंडर, कास्ट, कलर, एनीथिंग, इट मीन्स दैट यू आर अल्टीमेटली द स्टूडेंट, या यू आर द वॉइस ऑफ लिटरेचर ऑफ पार. आप लिटरेचर ऑफ पार की आवाज है. चूंकि इंसान के दर्द को, इंसान की समस्या को, इंसान के प्रॉब्लम्स को यहीं पर ही शेयर किया जा सकता है.
अदर डिसिप्लिन इंसान को डॉक्टर बना सकते हैं, अदर डिसिप्लिन इंसान को इंजीनियर बना सकते हैं, प्रोफेसर बना सकते हैं, इंसान को इंसान नहीं बना सकते हैं। इंसान को इंसान अगर कोई भी सब्जेक्ट बनाएगा, दैट इज योर, so there is the significance. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट आई वांट टू से, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2 दिन से एक ही गाना मैं बजा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर बहुत, जस्ट आई वांट टू नो द रिस्पांस। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर गिविंग योर फीडबैक, वरना समटाइम्स आई आई थिंक कि मैं एक ही yeah, this is why I'm giving you a very significant, yeah, something means such a type of example that's very important, that's very means uh, in a very easy and lucid way. I just want to tell. बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप जब एस्थेटिसिज्म की बात होगी, तमाम जो मूवमेंट्स आए हुए हैं और रोमांटिक एज खास करके पूरा रोमांस, इसी मतलब आप ये समझिए पूरा रोमांटिक एज इसका हिस्सा है। दिस इज व्हाई आई जस्ट वांट टू से कि ये चीजें। दूसरा चीज आपने अमूमन एक डिफिनीशन पढ़ा होगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। मैंने कई अपने लेक्चर में इसको कॉन्ट्रेडिक्ट किया कि द पीपल से कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ऑलवेज आई सेड दैट दिस डिफिनीशन इज रॉन्ग, ये डिफिनीशन करेक्ट नहीं है। और क्यों इसलिए करेक्ट नहीं है कि literature is the mirror of society. When you say, it means that कि mirror doesn't tell a lie, mirror doesn't tell a lie, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। when you present yourself before mirror, what you are, what is your height, what is your color, it will appear in mirror। जब अपने आप को आप दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में जो आप हैं वो आप, मतलब जो आप बाहर से हैं, मैं नहीं कहता अंदर से, जो आप बाहर से हैं वो चीज नजर आएगा। आप ये सोचिए कि अगर दर्पण झूठ बोलता, तो क्या कोई आदमी अपना अक्स या अपना चेहरा दर्पण में देखता? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। व्हाई डू यू सी योर सेल्फ इन अ मिरर? हम अपने आप को दर्पण में क्यों देखते हैं? हम अपने आप को दर्पण में इसलिए देखते हैं कि हम जैसे नजर आ रहे हैं वैसा हम उसमें दिखाई पड़े। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं और हम स्मार्ट नजर आते हैं, नो नॉट एट ऑल। लेकिन ध्यान में रखने की बात है कि जो डिफिनीशन ये कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ये मैं नहीं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं स्कॉट जेम्स, जिन्होंने किताब लिखी है मेकिंग ऑफ लिटरेचर। उसमें अगर आप देखेंगे, ही जस्ट सेज नो, लिटरेचर इज नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर मे बी द मिरर ऑफ सोसाइटी। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस आपने कर दिया? देयर इज ओनली वन वर्ड, is and may. Literature is not the mirror of society. Literature may be the mirror of society. That is the beauty of the definition. साहित्य समाज का दर्पण हो सकता है, ना कि है। जब आपने कह दिया है, तो इट मीन्स दैट कि आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया और उस सर्टिफिकेट के अनुसार उसको डिकोड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप उसको डिकोड करते हैं, देन यू कम टू नो, literature is not the mirror of society, it may be the mirror of society, because दर्पण में अंदर का इंसान नजर नहीं आता, लेकिन लिटरेचर में अंदर का इंसान नजर आता है। यू अल्टीमेटली यू फाइंड द ब्यूटी ऑफ अ मैन एट इनर लेवल। क्या आपके इमोशंस, क्या आपके जज्बात दर्पण में नजर आएंगे? नो, वो केवल टीयर्स नजर आएगा। व्हेन यू start to cry, when you start to lament, when tears roll from your eyes through cheek, then that appears in mirror। लेकिन साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक क्या है? जब मैंने आपको बताया था कि दिस इज एपिस्टेलरी नॉवेल, और उस एपिस्टेलरी नॉवेल में देयर इज लव अफेयर एंड ऑल द थिंग्स हैव बीन शेयर्ड थ्रू अ लेटर, व्हाट इज दैट? तो क्या क्या आप जब आप नावल पढ़ते हैं तो आप उसमें ये पाते हैं कि राइटर ये बताता है कि अ, एक कैरेक्टर शमीम है। वो शमीम जो है 5 फीट 5 इंच उसकी हाइट है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो चश्मा लगाया हुआ है। उसने क्या किया है, लेक्चर दे रहा है, उसके 10 2 हाथ हैं 10 उंगलियां, ये चीज बताता है? नो,
whether you study Letty Chatterley's Lover, whether you study Women in Love, whether you study Sons and Lovers, in any novel, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? अ मैन एट इनर लेवल। जब मैंने आपको कोटेशन लिखवाया था मैकबेथ का कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, कौन सा मिरर है जो इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? कौन सा मिरर है जहां पे इस इस जो है कोटेशन की नजाकत को जो है वहां पे बेहतरीन ढंग से बयां किया जा सकता है? हैव यू एनी मिरर? लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, all the perfumes are for a, yeah, yeah, yeah. It's yeah, स्कॉट जेम्स, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। इस चीज को बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन स्कॉट जेम्स ने इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है कि व्हाट इज लिटरेचर, देयर इज अ चैप्टर। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं कि व्हाट इज लिटरेचर, तो इसका मतलब है कि सामने वाले ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को कि लिटरेचर क्या है, इससे रिलेटेड चीजें पढ़ा होगा। देन आई एम टेलिंग यू। तो एक जो क्रिटिक है स्कॉट जेम्स है, उनकी किताब का नाम है मेकिंग ऑफ लिटरेचर। आप सारे लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सारे लोग नोट कर लीजिएगा द पार्टिकुलर नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक। रेशमा उस कमरे में उसमें किए थे, उस कमरे में। हाँ, झाड़ू लगा। अच्छा उधर हाँ, बुक का नाम है मेकिंग ऑफ लिटरेचर, MEKING, मेकिंग ऑफ लिटरेचर, LITERATURE, मेकिंग ऑफ लिटरेचर। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू कम टू नो कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ये चीज भी आपको कॉन्ट्रेडिक्ट लगेगी। नो, लिटरेचर मे बी द मिरर ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स दैट टू सम, जब आप कहते हैं मिरर ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही लिटरेचर में नजर आती है। क्या यह संभव है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी लिटरेचर में नजर आएगी? क्या जो लिटरेचर है वह फोटोकॉपी की मशीन है? क्या जो लिटरेचर है वह कैमरा है? क्या जो लिटरेचर है वह एक्सरे मशीन है? नो, नॉट एट ऑल। जब आप ये कह देते हैं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ मैन। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा मेरा हार्ट ऐसा है, तो वो हार्ट को आकार नहीं बताएगा, आकार बता के वो कहेगा हार्ट में ये चीज है, इसमें ये गड़बड़ी हो गई, इसमें इसका ये वाल खराब है, इसके लिए ये इलाज, इसके लिए ये दवा, इतना कह के चला जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इफ यू कम डॉक्टर मीन्स डॉक्टर लाइक मिस्टर शमीम या एनी अदर डॉक्टर, दोज हु आर द डॉक्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, दे विल ऑपरेट योर हार्ट इन अनदर वे। वे आपको आपके हार्ट को दूसरे ढंग से ऑपरेट करेंगे। एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस? That will be the process of aestheticism, aesthetic sense का। I will try to understand what's your problem, why you are crying, why you are weeping, who disturb you, तो all these things I will ask। तब अंदर का इंसान फूटेगा, वो शेयर करेगा, रोएगा। जब अंदर का इंसान आपसे शेयर करता है चीजों को, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो अपने असली उस पर आ रहा है। अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी दावत में गए हुए हैं, आपके बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, गुपचुप बैठा हुआ है, नॉट टेलिंग यू, नॉट जस्ट शेयरिंग एनीथिंग विद यू, इसका मतलब वह इंसान अंदर का नहीं है, वह तो बाहर का जो आपको नजर आ रहा है। when you speak, when you share, when you conversate, when you share your experiences, जब वह आपसे बोलता है तब वह निकल करके आता है। लिटरेचर आप पार अंदर के इंसान को, उसका नेचर क्या है, दैट इज ह्यूमन नेचर। व्हाट डज ही थिंक, व्हाट डज ही बिलीव, what the attitude he has, what the manner he has, how does he sees life, जीवन को वह कैसा देखता है, किस रूप में देखता है। इन सारी चीजों का खूबसूरत ढंग से स्टडी, खूबसूरत ढंग से स्टडी करने का नाम ही क्या है? लिटरेचर ऑफ पार है। यू कैन टेक एनी नॉवेल, यू कैन टेक एनी ड्रामा, यू कैन टेक एनी मूवी, उन सब का जो है
इसमें समटाइम्स देखिए, जो आपकी जिंदगी की घटना होती है, जैसे वह घटित होती है वैसा नहीं बयां किया जाता लिटरेचर में। समटाइम्स ईदर इट इज एग्जैजरेटेड और समटाइम्स इट इज अंडर एस्टिमेटेड। या तो कभी कभार उस घटना को बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, या तो कभी कभार उस घटना को कम करके बताया जाएगा। कभी भी उस घटना को वैसे नहीं बताया जाएगा एज इट आकस, जैसे ये घटित होता है। क्यों? बिकॉज एक्सरे मशीन नहीं है, मैंने बताया फोटो कॉपी नहीं है, मैंने बताया कैमरा उसमें नहीं है कि सारा चीज रिकॉर्ड हो जा रहा है। नो, नॉट एट ऑल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो डिसिप्लिन आप पढ़ रहे हैं यह क्यों इंपॉर्टेंट है। विद इन 2 क्लासेस मैंने वो किया। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेने वाला हूँ। वो क्लास कौन सी है? रेटरिक एंड प्रोसोडी, जहां से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। उस क्लास में जब आप रेटरिक और प्रोसोडी की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत पोइट्री से ही होती है। एंड यू विल कम टू नो कि जो पोइट्री है, इट्स व्हाट? पोइट्री इज नथिंग एट ऑल, इट्स ओनली पोइट्री इज नथिंग एट ऑल, इट्स व्हाट? इट्स अ लिटरेरी जानरा। यह लिटरेरी जानरा है, इट्स अ लिटरेरी फॉर्म। लेकिन इसको पोइट्री क्यों कहा गया? बिकॉज पोइट्री मीन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स। और पोयम को पोयम क्यों कहा जाता है? बिकॉज पोयम इज कंपोज्ड इन वर्स। यू हैव टू राइट डाउन दिस पॉइंट। आपको पोयम की डिफिनेशन जरूर। जो पोयम्स है, पोयम्स आर इन वर्स। पोयम्स का मतलब क्या है? कि पोयम्स आर कंपोज्ड इन वर्स, या पोयम इज कंपोज्ड इन वर्स। राइट डाउन दिस पॉइंट, पोयम इज कंपोज्ड इन वर्स। जो पोयम है वो आप देखेंगे कि वर्स में कंपोज किया जाता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय वर्स? वर्स मीन्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्स। शब्दों को जब जो है मीटर में गढ़ा जाता है तो उन्हीं लाइनों को ही वर्स कहा जाता है। हर लाइन को वर्स नहीं कहा जाता। इसीलिए आपको ये पता होगा या होना भी चाहिए, जब भी आप कभी किसी भी बच्चे का रेफरेंस लिखवाइएगा, खासकर पोइट्री का जब रेफरेंस लिखवाइएगा, तो उसमें कभी ना लिखवाइएगा दीज लाइन्स। पोइट्री के रेफरेंस में आपको लिखवाना चाहिए दीज वर्सेस। पोइट्री की लाइन को क्या कहा जाता है? वर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्स मीटर में लिखी जाती है। लाइन्स ऑफ पोइट्री आर कॉल्ड वर्स बिकॉज दे आर रिटन इन मीटर। देन व्हाट इज मीटर? सॉरी, व्हाट इज वर्स? वर्स मीन्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। जो शब्द हैं जब उनको मीटर के स्ट्रक्चर में रखा जाता है तो वही लाइनें क्या कही जाती? पोइट्री कही जाती है। और जो वर्स होता है उसके समूह को स्टैंजा कहा जाता है, पैसेज नहीं कहा जाता। पैसेज कहां पे आएगा? प्रोज में आएगा। लाइंस कहां पर आएगा? प्रोज में आएगा। और जो पोइट्री में लिखा जाता है उसको कहा जाता है कंपोज। इट हैज बीन कंपोज। कभी नहीं कहा जाता है रिटेन। कंपोज का मतलब क्या होता है? आर्टिस्टिक ढंग से उसको सजाया गया, इसलिए कंपोज वर्ड। कंपोज का मतलब होता है कि आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन, बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसको सजाया जाता है, लिखा जाता है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस, क्योंकि अब लेक्चर में आई एम नॉट टेलिंग यू एनी स्टोरी। लेक्चर में आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर यू कि इमोशनली यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स विच यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अब आपको समझने की कोशिश करना है। और वे टेक्निकल वर्ड्स क्या क्या है? टेक्निकल वर्ड्स ये है कि पोइट्री क्या है, पोयम क्या है, वर्स क्या है, मीटर क्या है, स्टैंजा क्या है, और कंपोज क्यों यूज किया जाता है पोइट्री में। प्रोज में क्या यूज किया जाएगा? पैसेज यूज किया जाएगा, लाइन यूज किया जाएगा, रिटेन वर्ड।
लेकिन पोइट्री के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? वर्सेस यूज किया जाएगा, कंपोज वर्ड यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका स्टैंजा वर्ड यूज किया जाएगा। तो जस्ट आई वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ वन और टू की आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, so these are the basic definition, these are the basic things which you should try to understand. है अभी वहां रखा हुआ है एक पीछे, हाँ। और तो कुछ नहीं लाना? नहीं, सब्जी लानी है। ठीक। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हम सबको समझना चाहिए कि, और इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मीटर, मीटर इज द स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल, नॉट वर्ड। ध्यान में रखिएगा, जब आपने वर्ड्स की बात की थी तो वर्ड्स में क्या आया था? वर्ड आया हुआ था। वर्ड्स का मतलब मैंने क्या बताया था? मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स में द पार्टिकुलर वर्ड विच आई यूज दैट वाज मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहां पे मैंने आपको क्या बताया? मीटर, METRE, मीटर का मतलब होता है कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल। चूंकि एक वर्ड में कई सिलेबल आ सकता है, तो वही सिलेबल देखा जाता है उस सिलेबल का स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल। So now I would like to conclude my lecture, and I just told you what is literature. लिटरेचर में टू टाइप्स, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर, दोनों में डिफरेंस को लेकर के। और ये मैंने बताया कि व्हाई द पीपल से लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, व्हाई डू यू नॉट से कि लिटरेचर इज नॉट द मिरर ऑफ सोसाइटी बट लिटरेचर मे बी द मिरर ऑफ सोसाइटी, and what is the significance of this discipline which you are studying. If people say that there is no value of this subject, then remember that कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया दुनिया में वह जो है फिलॉसफी आया, और फिलॉसफी ही जो है क्या था? फिलॉसफी आपका ह्यूमनिज्म उसी से पूरा आया है। तो दुनिया में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आया वह फाइन आर्ट्स आया हुआ है। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए, उसको डिफेंड करने की क्षमता होनी चाहिए। नेवर थिंक कि आप कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। किसी केमिस्ट्री के, किसी साइंस के स्टूडेंट से बेहतर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएम, ऑनरेबल पीएम ने और जो उसके मेकर हैं उन लोगों ने कहा कि जितने भी डॉक्टर और इंजीनियर हमने पैदा किए उनको हमने इंसान नहीं बनाया है, और उनको इंसान बनाने का समय आ चुका है। इसलिए जितने आईआईटीज हैं, जितने आईआईएम हैं, उन सारी जगहों पर फाइन आर्ट्स को पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस को पढ़ाया जाएगा उनको, ताकि वे समझ सकें कि कोई प्रॉब्लम जेंडर का ना हो। सबसे पहले तो शाहरुख खान को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो फेयर और लवली का प्रचार करना बंद कर दें। उन हीरोइनों को पढ़ाया जाना चाहिए जो लक्स का कहती हैं कि इसको लगाने से आदमी मतलब ब्यूटी आ जाती है। दे डोंट नो द, दे नो ब्यूटी, लेकिन कमर्शियलाइजेशन कितना ज्यादा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस तरह का प्रचार करते हैं तो दोस्त हु डोंट हैव द फेयर कलर, क्या उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी? तो यह लिटरेचर ऑफ पार है जो इसको क्वेश्चन करता है, जो इस पर क्वेश्चन मार्क करता है। तो प्लीज सेंड योर फीडबैक, और एक या दो लोग जो है अभी तुरंत मुझे बता दें कि हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर। क्योंकि चूंकि कल से हम जो है जब शुरू करें, कल से क्या आज शाम को भी अगर आप सारे लोग रहेंगे तो शाम को मैं रेटरिक और प्रोसोडी ही शुरू करूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा पोइट्री की डिफिनीशन और मीटर, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, ऑल दीज थिंग्स आई विल टेल यू। तो वो पीडीएफ फाइल में रहेगा, मतलब मैं आई आई विल नॉट बी विजिबल, यू विल गेट माय वॉइस फ्रॉम बैकग्राउंड, लेकिन जो है मैटर विजिबल रहेगा, क्योंकि वो समझाना पड़ेगा तो मैटर नजर आना चाहिए। अभी तक तो ऐसा था कि जो जेस्चर पोस्चर से चीजों को समझाने की जरूरत थी। तो 1 or 2 person कैन रिस्पॉन्ड मी कि हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हियर। या अच्छा सोनाली जी, थैंक यू आपको, अ लॉट ऑफ थैंक्स।
ओके, 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 ओके। श्योरली आई विल शेयर। जितने वीडियोज़ हैं मैं सब शेयर टीच मीन टाइप की ये खूबसूरती है कि पहले ये चीज़ नहीं हो पाता था, लेकिन जब से मैंने शुरू किया सारे वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे तुरंत अपलोड कर देता हूँ। हाँ, हाँ। और कोई आप में से कोई अगर कहना चाहे या कोई भी मुझे निखत नज़र आ रही हैं, उमा शंकर मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इफ दे वांट्स टू से एनीथिंग या एनी अदर पर्सन, देयर इज़ शाज़िया आल्सो, टीपू सुल्तान भी नज़र आ रहे हैं, चक्रेश या परहैप्स देवेश इज़ सेइंग समथिंग। या देव या yeah. Thanks. And Devesh ji, you are saying something. Yeah. देव हाँ, देवेश जी। जी, जी। या या जी, जी, जी। जी। हुँ। या या थैंक यू। या आप कम से कम अपनी डिफेंड कर डिफेंड कर सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यू वी कैन डिफेंड आवर। या या थैंक यू देवेश जी, थैंक यू। हाँ, राकेश जी बताइए। हुँ, हुँ। हैप्पीनेस इज़ द या अनडाउटली कह सकते हैं और हैप्पीनेस हमें फाइन आर्ट से ही मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। या अनडाउटली वो हमारे जीवन का हर हर डॉक्टर भी तो यही कहता है खूब जितना हँस सकिए, खुश रहिए। तो खुश रहने के लिए अगर कोई दवा होती तो डॉक्टर ना दे देता। व्हाई देयर इज़ अ पेन इन आवर लाइफ? व्हाई वी आर इन व्हाई वी हैव नेगेटिव फेनोमेना? व्हाई द पीपल आर कमिटिंग सुसाइड? इन सारी चीज़ों का। या थैंक्स तो नाउ आई एम गोइंग टू बाइंड दिस सेशन एंड होप यू विल मीट मी इन द इवनिंग ऑन टाइम हम लोग रहेंगे। Okay, okay, okay. And one request to all of you. Yeah, one request to all of you. Those who have joined this session, it's not a good thing ki I have to say again and again. Most of the people have not taken admission till now. So this is why I don't want to take the name of anyone because it's not a good platform जहाँ पे लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि बार-बार आपसे कहा जाए, यू ऑल आर सीरियस, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं, तो आई जस्ट सेड टू ऑल ऑफ यू कि मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट इन अ वेरी इम्प्लोरिंग टोन आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ टेक योर एडमिशन ऑन टाइम। चूँकि मैंने 20th को लास्ट टाइम रखा हुआ है, सो शायद मुझे उसके बाद लोगों को रिमूव करना पड़े तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। इट्स नॉट अ गुड थिंग मेरी साइड से भी अच्छा चीज़ नहीं होगा। इवन नो वन कैन से कि सर ने मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं दी। आई गिव अपॉर्च्युनिटी मेनी टाइम द बॉल इज़ इन योर हैंड एंड यू विल कम टू नो कि करीब 1 महीने से ज़्यादा हो जा रहा है क्लास चलते हुए, खासकर मॉर्निंग सेशन लगभग-लगभग 20-25 दिन हो जाएगा। तो यू ऑल गॉट अपॉर्च्युनिटी नाउ यू ऑल हैव टू टेक एडमिशन। ओके, थैंक यू।